जी भारत माता की भारत माता की ইতিমধ্যে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মঞ্চত আহি উপস্থিত হৈছেহি। সেয়েহে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত দত্তদেৱে এখনি অসমীয়া স্বাভিমান ফুলাম গামোচাৰে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতীক এখনি শৰাই অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়াদেৱে। ইয়াৰ পিছতে পুনৰ সম্বৰ্ধনা জনাব মাননীয় সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তদেৱে এটা ফুলাম জাপিৰে। সাংসদ মহোদয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব অসমীয়া স্বাভিমান এখনি এৰিয়া চাদৰেৰে। সম্বৰ্ধনা জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি লোকবাদ্য এযোৰ ভোৰ তালেৰে। সম্বৰ্ধনা জনাব এখনি গামোচাৰে বিজেপি জিলা সভাপতি শ্ৰী অসীম কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই। সকলোৱে উৰুলি দিয়ক। ইয়াৰ পাছতে সম্বৰ্ধনা জনাব বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰী মুনীন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পাছতে সম্বৰ্ধনা জনাব এতিয়া মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক উপস্থিত ৰাইজক সম্বোধি আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো। भारत माता की भारत माता की परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी मंच पे विराजमान विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के त्राणकर्ता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ बाबा विश्वनाथ के पावन पवित्र भूमि में विश्वनाथ जिले के तीनों विधानसभा समष्टि से आए हुए लोगों के ओर से बहुत बहुत अभिनंदन बधाई और आपको स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित आमार मजत उपस्थित श्रद्धेय रंजित दत्त डांगरिया, आमार मजत उपस्थित तीनोगराकी प्रार्थी श्री पल्लव लोचन दास डांगरिया, श्री मंजित दास डांगरिया, श्री उत्पल बरा डांगरिया और अहोम गण परिषद दलर सम्मानीय ज्येष्ठ नेता हाजरिका डांगरिया प्रमुखे मंचत उपविष्ट परम श्रद्धार विशिष्ट व्यक्तिসকল आमार सम्मानीय बर्तमान विधायकসকল और श्रद्धार राइज आमी सकलोए एबार ठिय हई आमार सकलोरे मरমৰ प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी डांगरियाक एटा बिराट हात चापरिरे स्वागत बिहालीলৈকে বিশ্বনাথলৈকে एबार हात चापरि अलप बजाय থাকিব।
এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সুহৃদ অভিভাৱক শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মই বহুত বিশেষ কথা নকওঁ, এটা অনুৰোধ জনাম। আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰায় 11টা বছৰ অসমে চতুৰ্দিশ বিকাশৰ আগলৈ আগবাঢ়িছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ আজি সকলো দিশত আজি উজ্বলি উঠিছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱত বাস কৰা, ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাস কৰা, চাহ বাগিচা অঞ্চলত বাস কৰা, চহৰত বাস কৰা সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত প্ৰায় 11.5 বছৰ 12টা বছৰে অসমক যি মৰম দিলে তাৰ মাত্ৰ এটা উদাহৰণ আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰত অসমক 9 লাখ কোটি টকা দি অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে যি তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি পাহৰিব নোৱাৰো। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিল অসমত, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ 10 বছৰৰ কাৰ্যকালত অসমে মাত্ৰ লাভ কৰিছিল 1.70 লাখ কোটি টকা। কিন্তু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 5 গুণ বেছি ধন আমাক অসমক প্ৰদান কৰি অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি দায়িত্ববোধ তাক প্ৰকাশ কৰিছে। এই উত্তৰ পাৰত বাবা বিশ্বনাথ আমাৰ পবিত্ৰ যি মন্দিৰ, এই অঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমত আজি মঙলদৈ মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, বিশ্বনাথে মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, লখিমপুৰে মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা অসংখ্য উদাহৰণ আছে, যাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, আমি ঋণী। আজি আমি ইয়াৰ পৰাই আমাৰ অভিভাৱক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰ তিনিওটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তিনিওজন প্ৰাৰ্থী আমি সকলোৱে জানো, তিনিওজন প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াই হওক, উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াই হওক, মুনীন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়াই হওক, তিনিওজন প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাইজৰ ওচৰত গৈছে। মই বিনম্ৰতাৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, অহা 9 এপ্ৰিল তাৰিখে এখন সুৰক্ষিত অসম আৰু এখন বিকশিত অসম আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঢ়ি তোলাৰ বাবে আপোনালোকে পদুম ফুলৰ ছবিত NDA প্ৰাৰ্থী মনোনীত প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট দি আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে, বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব। মোৰ লগত সকলোৱে এবাৰ আকৌ ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বিজেপি, বিজেপি, AGP, BPF, গণশক্তি, ৰাভা হাছং যৌথ মঞ্চ, NDA, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको फिर से असम वासियों के ओर से बाबा विश्वनाथ के पवन पवित्र भूमि से हृदय से आपको इस बिहाली में बराली पठार, इस खेल पठार में आयोजित इस सभा में स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ক ধন্যবাদ জনালো। এতিয়া আমি অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की जय गुरु शंकर। जय गुरु शंकर। नमस्कार। उजोनीर राइजोलोय मोरोम आरु श्रद्धा जनाइशु। विश्वनाथ जिले की ये धरती एक महत्वपूर्ण तपोस्थली है। यहां गंगमऊ थान है। यहां महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने वर्षों तक साधना की, भक्ति और समाज सुधार की एक नई धारा प्रवाहित की। यहां से कुछ ही दूरी पर मां कल्याणी का पावन स्थान है और आप सबको मालूम है काशी के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है। मैं बाबा विश्वनाथ की काशी का सांसद हूं और आज ये विश्वनाथ की जनता जनार्दन यहां की गुप्त काशी में मैं आज यहां भी आपको प्रणाम करने आया हूं। साथियों, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर पूर्ण रहा है। भाजपा एनडीए पर रहा है और यहां मैं देख रहा हूं विश्वनाथ में भी बीजेपी एनडीए के लिए अभूतपूर्व समर्थन है। ये हुजूम, ये उत्साह एक ही बात स्पष्ट कर रहा है, एक ही उद्घोष कर रहा है, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार, आको ए बार बीजेपी सरकार, आको ए बार एनडीए सरकार। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में बैठ नहीं सकता है। मेरी नजर जहां पहुंचे मैं लोग ही लोग देख रहा हूं जी। और ये एक जिले की रैली है। पिछले 20 साल में, मैं दावे से कहता हूं, पिछले 20 साल में कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए होंगे। मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं, ये जो जनसलाब है, एक बार वो ताकत हो तो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके दिखा दे। इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकता हूं कि एक जिले से इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें आशीर्वाद देने आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बार एनडीए के जितने कैंडिडेट हैं, इनको जरा आगे आने के लिए कह रहा हूं। सारे उम्मीदवार आगे आ जाए। जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सब एनडीए के, देखिए 3 उम्मीदवार और इतनी बड़ी जनसभा। मैं 1 मिनट इन तीनों से फोटो निकलवा करके आता हूं। साथियों, देश में जहां भी बीजेपी एनडीए सरकार है, वहां की जनता सुशासन की वजह से हमारी सरकार को
बार बार सेवा का मौका देती है। असम में पिछले चुनाव में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है असम की जनता इस बार भी बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत देने जा रही है। मेरी बात सही है? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। तीनों सीट आएगी, यहां से भारी बहुमत से आएगी। असम में इस बार जीत की हैट्रिक बनने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख
और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है, कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए, आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा है। साथियों, विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों के लिए भी आसानी होती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए रोजगार बनते हैं। साथियों, 10 साल पहले तक जब कोई आसाम आता था तो असम की बदहाली को देखकर हैरान होते थे। आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं। एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ ही समय पहले दुनिया ने असम का वो हाईवे भी देखा है, याद है आपको? ऐसा हाईवे, असम का हाईवे, जहां लड़ाकू विमान हाईवे पर उतर रहे हैं। पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हुई। साथियों, अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आपने हाईवे पर फाइटर जेट उतरते देखे, अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे से भी गाड़ियां गुजरेगी। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी और नीचे से गाड़ियां चलेगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने के निर्णय को स्वीकृत कर लिया है और इस पर करीब 18,500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ये 18,500 करोड़ रुपया टनल तो बनेगी, लेकिन ये रुपया असम में लगने वाला है, यहां के लोगों का फायदा होने वाला है। साथियों, इस अंडर वाटर टनल के बनने से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे असम की बाकी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जब ये बनेगी तब तो फायदा होगा ही, लेकिन निर्माण के समय भी इससे अनेक रोजगार भी मिलने वाले हैं। साथियों, बीजेपी
असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम दशकों पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते एक दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। और इसलिए मैं कहता था, ए फॉर असम, अल्फाबेट का ए असम का ए। साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। देखते ही देखते असम की लाखों बीघा जमीन अवैध कब्जे के तहत चली गई। साथियों, यहां जो हमारे सत्र है, नामघर है, ये हमारी आस्था के स्थान है। लेकिन कांग्रेस ने असम के अलग अलग जिलों में सत्र की हजारों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे होने दिए। वोट बैंक को बचाने के लिए अवैध कब्जे होने दिए। जहां कीर्तन, बोरगीत और भागवत से समाज का जुड़ाव होता, वहां कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसा दिया। आज बीजेपी सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन ले रही है। बीते सालों में
सत्र से जुड़ी ऐसी हजारों बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए हैं। साथियों, कांग्रेस की दुर्नीति ने असम की शान, यहां की सेंचुरी को, जंगलों को और एक सिंग वाले राइनो तक को नहीं छोड़ा। लाओ खोवा बुराचा पोरी में क्या हालत थी, ये आप सभी ने देखा है। लाओ खोवा बुराचा पोरी सेंचुरी अभी राइनो का घर हुआ करता था। कांग्रेस ने राइनो का घर छीनकर अपने वोट बैंक को दे दिया। इसलिए यहां राइनो को देखने के लिए लोग तरस गए। इसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ा, आपकी रोजी रोटी पर पड़ा, आपके रोजगार पर पड़ने लगा। साथियों, आपने बीजेपी एनडीए सरकार बनाई और हमारी सरकार ने अवैध कब्जे को हटाया। अब 40 साल बाद इस सेंचुरी में फिर से एक सिंग वाले राइनो दिखने लगे हैं। ये सिर्फ घुसपैठियों से जमीन वापस लेने का अभियान नहीं है, ये असम की पहचान, असम की परंपरा और प्रकृति को घुसपैठियों से बचाने का अभियान है। लेकिन आपको सावधान भी रहना है। कांग्रेस अब खुलकर अवैध कब्जे के पक्ष में आ गई है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का बचाव कर रही है। इसलिए आपका एक वोट असम की सुरक्षा तय करेगा। घुसपैठ और घुसपैठियों के इरादे पस्त करेगा। आपनार एटा भोटे अहोमोर हुरेखा सुनिश्चित करीब अनुप्रवेशारो अनुप्रवेशकारी उद्देश्य विफल करिब। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार घुसपैठियों से अवैध कब्जा छुड़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के संतानों को भूमि के अधिकार दे रही है। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, एससी कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का सम्मान है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि हर जरूरतमंद आदिवासी और मूल निवासी परिवार को जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। साथियों, विश्वनाथ की पहचान तो चाय बागानों से है, टी गार्डन से है। यहां का मनोबारी चाय बागान हमारी शान है और इस चाय वाले का मोह चाय के बागानों से नहीं होगा तो भला किसका होगा। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि चुनाव घोषित होने के बाद मैं आज पहली बार आया तो मैंने चुनाव प्रचार का अभियान कहां से शुरू किया?
मैं आज सुबह सुबह चाय बागान चले गया। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लिए। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के बाद मैं असम में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए निकला हूं। और मुझे पक्का विश्वास है चाय बागान की माताओं बहनों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है। यहां लगभग 200 सालों का परिश्रम है, पूरी परंपरा है। लेकिन आपको कांग्रेस के पाप नहीं भूलने हैं। कांग्रेस ने 60 सालों में चाय समुदाय को, चाय बागानों में काम करने वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाए रखा। कांग्रेस की सरकार को कभी याद ही नहीं आया कि टी गार्डन में काम करने वालों को भी भूमि का अधिकार चाहिए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे देने का काम शुरू कर दिया। भूमि पर अधिकार देना शुरू किया है। और मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय पहले गुवाहाटी में मुझे भी ऐसे अनेक चाय बागान के परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपने का अवसर मिला। अब टी गार्डन के लाखों परिवारों को पक्के घर, टॉयलेट, गैस सिलेंडर, नल से जल, बिजली, ऐसी अनेक सुविधाएं मिलना और भी आसान हो जाएगा। असम बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। डबल इंजन सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, उनका सबसे अधिक लाभ गरीबों को मिल रहा है। लाखों परिवारों को फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है। कांग्रेस के राज में बच्चों की स्कॉलरशिप तक में घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। आज एससी एसटी परिवारों के बच्चे की पढ़ाई के लिए उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किया जाता है, बीच में कोई कट कमीशन नहीं हो सकता। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ, सबका विकास करती है। इसलिए बीजेपी एनडीए को विजयी बनाना है। बीजेपी तुष्टीकरण नहोय, हकोलोरे लोग होई, हकोलोर उन्नति हाधोन करे। सेई कारणे बीजेपी एनडीए का जय कोरबा लागे। साथियों, आपसे बात करते हुए मैं कनकलता बरुआ और मुकुंद काकोती का भी, उनको भी पुण्य स्मरण करूंगा, उनका याद करूंगा। आजादी की लड़ाई में 17 साल की एक बेटी सीने पर गोली खाती है, लेकिन हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ती। ऐसे बलिदानों ने हमें ये आजादी दी है। लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का सारा श्रेय सिर्फ एक शाही परिवार को दे दिया। आज की पीढ़ी कांग्रेस की ये सच्चाई देखकर हैरान है।
आज बीजेपी एनडीए को पूरे देश में समर्थन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीजेपी विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वही कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। साथियों, असम की जनता भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का अपमान भी नहीं भूल सकती। बीजेपी एनडीए सरकार ने महान भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। हमने तो कांग्रेस के उस नेताओं का भी सम्मान किया जिन्होंने असम के लिए, देश के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को भी भुला देती है। आप याद कीजिए, बाबू छबीलाल उपाध्याय जी असम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका इतना बड़ा योगदान, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी दरकिनार कर दिया। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण किया। गुवाहाटी और सोनितपुर में उनकी प्रतिमा लगाई ताकि उनका योगदान भावी पीढ़ी जान सके। साथियों, बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने असम के, नॉर्थ ईस्ट के अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हमारी सरकार ही है जिसने श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मभूमि बतौद्रवा थान का विकास किया। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसलिए आपका वोट विकास और विरासत दोनों के नाम पर पड़ना चाहिए। आपना लोकोर भोट बिका आरो हंसकृति देव तारे नाओ पराटो उचित। साथियों, बीजेपी एनडीए ने अपने बहुत परिश्रमी काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। ये सारे परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, इन सभी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप सभी को याद रखना है, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा बूथ जीतेंगे तो आपको बोलना है चुनाव जीतेंगे। बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे। बूथ जिकिले निर्वाचन जिकीम, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले निर्वाचन जिकेलम जिकीम। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जिससे भी मिले, अभी मतदान 9 तारीख को होने वाला है। आप गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। आप जिसको भी मिलेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे मेरा काम करेंगे। सबके सब लोग करेंगे। आप जब भी जिसको मिले तो उनको कहिएगा कि मोदी जी ने बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। मेरी शुभकामनाएं पहुंचा देंगे, हर किसी को पहुंचा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আজি আমি সভাৰ সমাপ্তি ঘোষণালৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই সভাত আমাৰ তিনিওটা সমষ্টিৰ পৰা যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আহি সভাৰ সুস্থ বৃদ্ধি কৰিলে তেখেতসকলৰে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আজি আমি সভাৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।